Hello class, it's a second lecture of your chapter Reaching the Age of Adolescence. In the previous lecture we have done about the half part of the chapter. So let's start the lecture. In this lecture we are going to learn about the menstrual cycle. So what is menstrual cycle? Menstrual cycle involves the series of cyclic changes occurring in the ovaries and female reproductive tract during the reproductive period of female. Menstrual cycle is a cycle, the cyclic changes, वो cyclic changes जो female reproductive tract में ovaries में होता है उसे कहते हैं. Reproductive period of female extend from puberty means at the age when the girls are able to reproduce. So and is termed MENA. 10 to 14 years to menopause means up to whenever the menstrual cycle goes on. During this period, every month a menstrual cycle occurs whose peculiar feature is period, the vaginal bleeding. In every month, the ovaries the ova are formed, and when the ovas are not fertilized, they convert into the vaginal bleeding. That lasts for about 4 days, and primary aim of menstrual cycle is to prepare the female for fertilization and pregnancy. So the menstrual cycle helps in the fertilization and pregnancy in the female body. Means female body में जो every month bleeding होती है, इसके बाद ही the females are able to reproduce and they are ready for the fertilization. Next is period, and on average a menstrual cycle is completed. Menstrual cycle every 28 days के बाद आता है. Though it may be for 1 or 2 or 3 or 5 days. 1 to 5 days होता almost, इसे ही period कहते हैं. Phases. During the menstrual cycle, the wall of the uterus passes through several phases, which are controlled by 2 hormones, estrogen and progesterone. You know that the estrogen and progesterone as the female hormones, female में hormones पाए जाते हैं जो कि uterus के wall से pass होते हैं, और फिर इन्हीं walls जो है these uterus walls becomes into the vaginal bleeding. The first phase of menstrual cycle usually lasts about 4 to 6 days. During this period the lining of the uterus is shed. जो uterus की lining होती है वो shed होती हैं, और जो कि जिनके कारण की bleeding होता है. This duration of the first phase is called the woman's period, and this period is called the menstrual phase or menstrual cycle because it occurs after every 28 days, so that's why it is known as the menstrual cycle. Next, the sex determination means how it is decided that the new infants or the newly born babies are the boys or the girls. लड़की होगी या लड़का, ये determination आखिर कैसे होता है. तो Let's see. All human beings have 23 pair of chromosome. हम सभी की बॉडी में आप जानते हैं कि सेल होते हैं, आपने सेल पढ़ा है. सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं. तो ये कितने होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं. 2 chromosomes out of these are of sex chromosome. 23 पेयर्स मीन्स 46 होते हैं. ठीक है. तो जो 1 पेयर होता है वो क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम होता है, जिनके द्वारा ये डिसाइड होता है कि द न्यू वन इज फीमेल और द मेल. नेम इज X and Y. अ फीमेल हैज़ 2 क्रोमोसोम. फीमेल में ये जो एक पेयर क्रोमोसोम होता है वो होता है X क्रोमोसोम, while a male has 1 X and 1 Y क्रोमोसोम. मेल में XX होता है, फीमेल में XX दोनों होते हैं, और मेल में लास्ट वाला जो 23rd पेयर होता है वो X and Y होता है. द गैमेट्स एग एंड स्पर्म. आपको पता है द फीमेल गैमेट इज एग एंड द मेल गैमेट इज स्पर्म, हैज़ ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम. द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज़ 1 X क्रोमोसोम, बट द स्पर्म आर ऑफ 2 काइंड्स. स्पर्म में XY होता है. One kind has 1 X chromosome and the other kind has a Y chromosome. When a sperm containing X chromosome fertilize the egg, जब XY में से X fertilize करता है egg को, the zygote would have 2 X chromosome. तो zygote में फीमेल में XX ही होता है, मेल का X ही करेगा X से, तो 2 X हो जाएंगे, मीन्स फीमेल होगा. एंड इफ द स्पर्म कंट्रीब्यूट, और अगर स्पर्म ने Y कंट्रीब्यूट किया तो फीमेल के X से मिला, तो क्या होगा? क्रोमोसोम टू द एग एट फर्टिलाइजेशन द zygote वुड डेवलप इनटू अ मेल चाइल्ड. तो zygote किस में कन्वर्ट होगा? मेल चाइल्ड में. देखो ये फीमेल में XX, मेल में XY.
अगर ये एक्स से मिलता है तो गर्ल बनेगी, ये एक्स इस वाई से मिलता है तो बॉय होगा। द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ द फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन अनबॉर्न बेबी। तो इसका मतलब कि सेक्स डिटर्मिनेशन फादर के क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है, बिकॉज द फीमेल हैव द एक्सेस। फीमेल में दोनों एक्स ही होते हैं, मेल की वजह से ही ये डिसाइड होता है। The belief that the mother is responsible for the sex of her baby is completely wrong. To blame her for this is totally unjustified. तो ये कहना कि माँ की वजह से लड़की पैदा होती है, ये अनजस्टिफाइड है, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट सी द रोल ऑफ हार्मोन इन कंप्लीटिंग द लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट। अब आपको पता है कि हमारी लाइफ साइकिल क्या होती है, हम स्टेजेस में बड़े नहीं होते कि पहले अंडे बने थे, फिर अंडा फूटा तो हम निकले, फिर हाथ निकला, पैर निकला, ऐसा नहीं है। ऐसे ही हम पैदा होते हैं, बस ऐसे से बड़े होते जाते हैं। लेकिन इंसेक्ट में आप जानते हो कि एग हैचेस इनटू लार्वा, देन प्यूपा, कैटरपिलर। तो ये जो डिफरेंट फेजेस हैं ये हार्मोन की वजह से होता है। दिस ऑल इज डन बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स। तो लेट्स सी कैसे होता है, क्या होता है। द कैटरपिलर ऑफ सिल्कवॉर्म, आपको पता है कि सिल्कवॉर्म में कैटरपिलर होता है। द कैटरपिलर ऑफ सिल्कवॉर्म हैज़ टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस to become an adult. Similarly, a tadpole also passes through various stages to become a frog. ऐसे ही tadpole भी बहुत सारे stages से होकर के frog बनता है। This process of change from larva से caterpillar से adult होने तक को क्या कहते हैं, metamorphosis कहते हैं। The process of metamorphosis in insect is controlled by insect hormone. और ये पूरा प्रोसेस कि लार्वा जो है वो कैटरपिलर में बदले, फिर कैटरपिलर से एडल्ट में बदले, एग हैच हुआ होगा तभी लार्वा बना होगा, ये सब एक हार्मोन के द्वारा होता है जो कि सिर्फ इंसेक्ट में पाए जाते हैं। इन अ फ्रॉग द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस इज रेगुलेटेड बाय थायरॉक्सिन हार्मोन। इंसेक्ट में हमारी बॉडी में भी थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, और कहाँ पाया जाता है, हमारे गले में, नेक में हमारे ग्लैंड होता है थायराइड ग्लैंड, और यही थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन करता है जिसे थायरॉक्सिन या ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। तो यही थायराइड ग्लैंड इनकी बॉडी में भी थायरॉक्सिन का सिक्रीशन करता है। अ टेडपोल कैन नॉट बिकम एन एडल्ट इफ देयर इज डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। लेकिन अगर जिस पानी में टेडपोल है वहाँ आयोडीन की कमी है तो फिर क्या होगा, वो ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है, उनका ग्रोथ नहीं होगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या देख रेख करें कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो अच्छा हो। हेल्थ इज़ अ स्टेज ऑफ कंप्लीट मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग। न्यूट्रिशनल नीड ऑफ द एडोलेसेंट, अ बैलेंस्ड डाइट मीन दैट द एडोलेसेंट में सबसे ज़रूरी है न्यूट्रिशनल डाइट। मीन जो आप डाइट ले रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, क्योंकि यू ऑल आर इन द ग्रोइंग एज। अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो आप एक्टिव नहीं होगे, प्रोटीन की मेनली कमी है तो आप में हाइट नहीं बढ़ेगा, ग्रोथ नहीं होगा, फैट, विटामिन, ये सब एक निश्चित मात्रा में होने चाहिए। सो आवर इंडियन थाली इज़ बैलेंस डाइट। जो हम रोटी, दाल, चावल, सब्जी, अचार, सलाद खाते हैं, ये एक बैलेंस डाइट है। आवर इंडियन मील ऑफ रोटी, राइस, दाल, पल्सेस, क्यों, क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाइटामिन्स, मिनरल्स सभी प्रेजेंट हैं। मिल्क इज़ अ बैलेंस्ड फूड इन हर सेल्फ, और मिल्क लेना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बैलेंस्ड है, इनमें कैल्शियम भी है, प्रोटीन भी है, तो आपके हेल्थ के लिए, बोन्स के लिए, उनके एलोंगेशन के लिए बेस्ट है। फ्रूट ऑल्सो प्रोवाइड नॉरिशमेंट, और फ्रूट्स आपको पता है कि फ्रूट थोड़ी क्वांटिटी में खाना है पर रोज़ खाना है, क्योंकि दे गिव्स अस विटामिन्स एंड मिनरल्स, एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द इंक्रीज द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी, हमें रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। फॉर इन्फेंट्स मीन्स द न्यूली बॉर्न बेबी, मदर मिल्क प्रोवाइड ऑल द नॉरिशमेंट दैट दे नीड। मदर मिल्क ही, माँ का दूध ही उन्हें सब कुछ, सारा न्यूट्रिशन देता है। आयरन बिल्ड blood and iron rich foods such as leafy vegetable, jaggery, meat, citrus, Indian grocery means amla, gooseberry, amla and good for adolescent। ये सब चीज़ एडोलेसेंट्स के लिए, ग्रोइंग एज वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। चिप्स एंड पैक्ड और टिन स्नैक थ्रो वेरी टेस्टी शुड नेवर रिप्लेस रेगुलर मील्स एज दे डू नॉट हैव एडिक्वेट न्यूट्रिशनल वैल्यू। चिप्स या पैक्ड चीज़ें जो हम खाते हैं वो सिर्फ हमें टेस्ट देते हैं, हमें किसी भी तरह का हेल्थ या बेनिफिट या न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होता उनमें, सो वी हैव टू अवॉइड इट। नेक्स्ट इज़ पर्सनल हाइजीन, अपनी साफ सफाई का ध्यान कैसे दें। एवरीवन शुड हैव अ बाथ एट लीस्ट वंस ए डे, ये तो सब करते हैं कि हर को एक दिन में एक बार तो नहाना ही चाहिए। इट इज़ मोर नेसेसरी फॉर टीनेजर्स, लेकिन टीनेजर्स के लिए नहाना बहुत ज़रूरी है।
साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप साफ से नहीं रहोगे तो आपका ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगा, आपकी ग्रोथ रुक जाएगा। बिकॉज द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट, वाई बिकॉज आपकी बॉडी में अभी नए नए स्वेट ग्लैंड का फॉर्मेशन हुआ है, स्वेट का सिक्रेशन हो रहा है। अगर आप साफ़ सफाई नहीं रखोगे तो आपकी बॉडी कैसे हो जाएगी, स्मेली हो जाएगी। और अगर स्वेट है, पसीना है, नहाओगे नहीं, सफाई नहीं करोगे तो फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन्ड एवरी डे। If cleanliness is not maintained, there are chances of catching bacterial infection. Girls should take special care of cleanliness during the time of the menstrual cycle. Exercise, you also have to do the exercise. Walking and playing in fresh air keep the body fit and healthy. All young boys and girls should take walk, exercise and play outdoor game. खेलना कूदना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे कि आपकी हेल्थ अच्छी होती है। Say no to drug and alcohols. Adolescence is a period of much activity in the body and mind. Adolescence वो पीरियड है जब आपको खेल कूद में आपकी बॉडी आप ज़्यादा समझ में आता है, बातें भी समझ में आती है, इमोशनल हो जाते हो, ग्रो हो रहे हो, आपकी बॉडी में हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है, तो इसलिए आपको सही चीज़ों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। So do not feel confused and insecure. If anybody suggests that you will get relief if you take some drugs, just say no. तो आप ड्रग्स, अगर कोई समझाता है कि अभी चीज़ें ज़्यादा हैं, आपको थकान हो रही है, ड्रग्स हेल्प करेगा, तो ये गलत है। ड्रग्स आर एडिक्टिव, आप उनके आदी हो जाते हो, सो यू हैव टू अवॉइड द ड्रग्स। अगर आप लोगे तो आपकी हेल्थ और आपकी हैप्पीनेस खत्म हो जाएगी। तो ये सारी बातें जो आपको एडोलेसेंट, ड्यूरिंग एडोलेसेंट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, बिकॉज यू ऑल आर इन द ग्रोइंग एज। सो दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड, आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।